Hello everyone, welcome to SKU Digital Class. Myself Dr. Akash Singh. Today I am going to deliver my topic on introduction to plant breeding. What is plant breeding? Plant breeding is the branch of biology. Plant breeding is the branch of biology which concerns the changing of genotype of plants so that they become more useful of humankind. It's based on genetics and cytogenetics. Cytogenetics is the aim at improving the genetic makeup of humankind to related the field and crop plants. Its object improving yield, quality, disease resistance plants, disease resistance crop, forecasting, tolerance and important characteristics of the crops. Plant breeding deals precisely with the above aspects of crop production. It consists of the principle and the method required for the favorably changing the genotypes या genetic constitution of crop plants. It's mean plant breeding क्या है? Plant breeding is a art. एक art है, science है, technology है. Science मतलब जो डील कर रहा है किसको? क्रॉप प्रोडक्शन को. फाइनलाइज द मेथड इज यूजफुल only production of crop. How to improve production in any type of crop plants. It consists of the principle. Which principles and which methods? They are most usually only humankind's. Crop improvements means combining desirable characteristics is one plants and they multiply. इसका मतलब ये है कि हमने क्रॉप को इम्प्रूव करने के लिए किसी एक प्लांट्स को यूज किया, उसके हमने मल्टीप्लिकेशन किया और ह्यूमन काइंड्स को प्रोवाइड कराया कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन उस क्रॉप का हो सके. प्लांट ब्रीडर्स, अब प्लांट ब्रीडर की बात है. जो प्लांट ब्रीडिंग से का वर्क करता है उसे हम प्लांट ब्रीडर करते हैं. प्लांट ब्रीडिंग इज टू द सेलेक्ट प्लांट्स विच डिजायरेबल कैरेक्टर्स, क्रॉस देम and then identify the offspring that combine the attributes of both parents. First of all, there are dividing in two lines which namely is A and B. A representing male and B representing is female. So plant breeder का वर्क क्या है? उसने प्लांट्स को सिलेक्ट किया, किस कैरेक्टर्स के? डिजायरेबल कैरेक्टर्स के साथ, एंड क्रॉस, और उनका क्रॉस कराया. क्रॉस कराने के बाद क्या किया? उसका आइडेंटिफिकेशन किया उसकी ऑफस्प्रिंग में कि क्या सिमिलरिटीज देखने को मिल रही है या नहीं मिल रही है, एंड कंबाइन द एट्रीब्यूट ऑफ बोथ पेरेंट्स. और उसने कॉम्बिनेशन किससे देखा? उसके सारे जो कॉम्बिनेशन कैरेक्टरिस्टिक्स थे वे उसके पेरेंट्स के साथ उन्होंने कंबाइनिंग देखे. He will more precisely work for the multiplies the progeny to supply to farmer, grower or planters. Today plant breeding is a specialized technology based on genetics. It's now clearly understood that within a given environment crops improvement has to be achieved through superior heredity. Heredity, it's mean a generation to generation any type gene transfer, that's called is heredities. Nature of plant breeding. What is the nature? Plant breeding is the art, science and technology. The three terms is involving in plant breeding. First of all art, second science and third is technology. Art is the human imaginations. किसी किसान ने या किसी ह्यूमन काइंड्स ने जो कि खेती या किसानी से बिलोंग करता है, उसने क्या किया? उसने किसी चीज़ को इमेजिन किया, उसने क्रिएटिविटी की, अपने स्किल्स में क्रिएटिविटी डाली, इम्प्रूव करने के बाद अपने आप को वैल्यूएट करने के बाद उसने नेक्स्ट स्टेप मतलब साइंस में आया. साइंस क्या है? ए बॉडी है नॉलेज,
obtained through scientific method of observation, experimental and objective, its most basic and indisciplined attributes. इन दोनों को कैलकुलेट करके जिस चीज में यूज किया जाता है वो है टेक्नोलॉजी. टेक्नोलॉजी मतलब व्हेन साइंटिफिक प्रिंसिपल एंड ह्यूमन स्किल्स एंड दे इन ingenuity and utilize or generate useful product of service. Aim. Plant breeding aim to improve the characteristics of plants to show that they become more desirable agronomically and economically. The scientific objects may vary from depending on the crop under considerations. जैसे लिखा है मतलब कि या जो चीज़ बताना वाला है उसका क्या उद्देश्य क्या रहता है प्लांट ब्रीडिंग का. प्लांट ब्रीडिंग का उद्देश्य है कि उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके एग्रोनॉमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब देयर आर टू टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स. फर्स्ट ऑफ ऑल एग्रोनॉमिकल, सेकंड इकोनॉमिकल. एग्रोनॉमिकल मतलब उसके पूरे ही तौर पे हमने शस्य, जितने भी शस्य विज्ञान से रिलेटेड जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में स्टडी करना, और उसके इकोनॉमिकली बेस पे हमने उसके रिसर्च करना या उसके बारे में हमने अध्ययन करना. इसका एम है. उसको ह्यूमन काइंड्स के प्रति कितना यूजफुल लाना है, ये चीज़ का मुख्य उद्देश्य प्लांट ब्रीडिंग का रहता है, जो कि सक्सेस या जो सक्सेसफुल होता है वो होता है प्लांट ब्रीडर के द्वारा. ऑब्जेक्ट्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग. The prime aim of plant breeding is to improve the characteristics of plants that they become more useful agronomically and economically. Some of the objects may be summarized follow. Objects of plant breeding. Objects मतलब उनके क्या क्या फैक्टर हैं, क्या क्या कारक हैं, कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स के हम प्लांट ब्रीडिंग के माध्यम से हमें अध्ययन करना है, वे कुछ इस प्रकार हैं. पहला है हायर यील्ड. हायर यील्ड क्या होता है? मोस्ट ऑफ द प्लांट ब्रीडर इज प्रोग्राम इन एम टू हायर क्रॉप यील्ड्स. मतलब जो भी प्लांट ब्रीडर है या जो भी इससे रिलेटेड वर्कर है, हम उसका मुख्य उद्देश्य क्या रहता है कि हाउ टू इम्प्रूव प्रोडक्शन, हाउ टू इम्प्रूव या हाउ टू गेन द प्रोडक्शन. जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लेंगे डॉर्फ वैरायटी लेते हैं हम वीट की. वीट में जो फैक्टर पाया जाता है वो RTH1, RTH2, ये दो ऐसे जीन वीट में मैक्सिको के द्वारा इंट्रोड्यूस कराए गए थे, जिसके कारण कि पौधे की हाइट कम हुई और प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ. तो इसी तथ्य में देखा कि हायर यील्ड का क्या मतलब है कि किस चीज़ में हम यील्ड का प्रोडक्शन क्या क्या हायर कर सकते हैं या क्या क्या अधिक कर सकते हैं. वो है ग्रेन यील्ड, फॉडर यील्ड, फाइबर यील्ड, शुगर है, ऑयल कंटेंट है या ऑयल का प्रोडक्शन है, एक्सेट्रास. तो डेवलपिंग हायर वीट हाइब्रिड वैरायटीज ऑफ ज्वार, मेज, बाजरा, वीट, legume, etc. Second, improve the qualities. First of all, quality, the plant characters determine vary from the one crop to another, such as grain size, grain colors, milling and baking qualities, wheat, cooking qualities in rice, malting in barley, size, shape and flavor in fruits, and keeping quality of vegetables, protein contents in legume, in methionine and tryptophan content in pulse, etc. तो इम्प्रूव क्वालिटी मतलब प्लांट ब्रीडर का जो उद्देश्य है वो है इम्प्रूव्ड क्वालिटी. मतलब कि कैसे हम क्रॉप की क्वालिटी को बढ़ाएं, तो उसमें कौन कौन से फैक्टर है जिनकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना है. पहली क्वालिटी इम्प्रूव्ड है साइज, शेप, कलर, माइनिंग, मिलनिंग एंड बेकिंग क्वालिटीज. किसमें? वीट में हुआ सर. जैसे कुक्स क्वालिटी है राइस में हुआ कि कैसे जल्दी गल जाए, उसका माल्टिंग ना हो. सेकंड है साइज एंड शेप, फेवरिंग फ्रूट का साइज और शेप एक होना चाहिए उसके. उसमें क्या है ना, उसमें जो जो चीज़ जैसे फैक्टर जो रहने चाहिए, जो भी क्वालिटी रहनी चाहिए वो इम्प्रूव होना चाहिए. एंड प्रोटीन कंटेंट होना चाहिए लेग्यूम में. और सबसे लास्ट है जैसे कि जो एमाइनो एसिड्स हैं, ट्रिप्टोफैन्स वगैरह हैं, ये सब पल्स में भी इम्प्रूव करें ताकि जो प्रोटीन हमारी ह्यूमन बॉडी को या ह्यूमन काइंड्स को रिक्वायर्ड है वो हम पूर्ण कर सकें. थर्ड है डिजीज एंड इंसेक्ट रेसिस्टेंस. डिजीज वैरायटीज या रेसिस्टेंस वैरायटी ऑफर द चीपेस्ट एंड मोस्ट convenient method of disease and pest control. They not only help to increase the production but also stable the productivity. Example, rust resistance in wheat. जैसे कि कोई वैरायटी है, यदि उसमें किसी प्रकार का इंसेक्ट का अटैक है, पेस्ट का अटैक है,
तो हम उसमें इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड को यूज़ करके उनसे हम निजात पालें, जिसके कारण क्या होगा कि हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा। और जो प्लांट ब्रीडर का मुख्य उद्देश्य है वो है प्लांट की क्वालिटी को इम्प्रूव करना, प्रोडक्शन को बढ़ाना, तो उसके तहत हम डिजीज और इंसेक्ट रेसिस्टेंस वाली वैरायटी को लगा सकें। फोर्थ है चेंज द मैच्योरिटी ड्यूरेशन। चेंज द मैच्योरिटी ड्यूरेशन का मतलब है कि एक टाइम पे हम मैच्योरिटी रखें, जैसे कि मूंग है और उर्द है, इसमें टाइमिंग रहती है मिनिमम, जो मैच्योरिटी टाइम रहता है वो रहता है 70 to 80 डेज। सोइंग के 70 से 80 दिन बाद हम उसको काट सकते हैं, या मैक्सिमम कोई वैरायटी ऐसा रहता है कि जो 80 से 110 दिन, 90 दिन, 100 दिन वेरी करती है प्रोडक्शन में, कटिंग हार्वेस्टिंग के समय। तो वो जो मैच्योरिटी टाइम रहे वो एक रहना चाहिए। इसके लिए हम चेंज उसकी मैच्योरिटी को ड्यूरेशन चेंज करें, एक ऐसी वैरायटी को ग्रो अप करें, या वैरायटी के साथ साथ हम उसके साथ उसका मल्टीप्लिकेशन करें, ताकि जो भी वैरायटी हम लगा रहे हैं उनका हार्वेस्टिंग पीरियड एक ही हो। एग्रोनॉमिकल कैरेक्टर्स, जो एग्रोनॉमिकल कैरेक्टर्स में क्या है कि मॉडिफिकेशन होना चाहिए, किसी भी एग्रोनॉमिकल कैरेक्टर्स का मॉडिफिकेशन करते रहें, कंटिन्यूस दिन प्रतिदिन, ईयर टू ईयर हम मॉडिफिकेशन करें। उसके साथ हम देखें कि जैसे ड्वार्फ वैरायटियां हैं, प्लांट उसकी ड्वार्फ है, उसकी प्लांट की हाइट इंप्रूव करना है, अगर हाइट इंप्रूव होगा तो फॉडर क्वालिटी इंप्रूव होगी, फॉडर क्वालिटी होगी तो ग्रेन क्वालिटी इंप्रूव होगी, सनलाइट का ऑब्जर्वेशन ज़्यादा होगा, और बहुत सी चीज़ें हैं। फर्टिलाइज़र, उसके लिए क्या क्या है कि ब्रांचिंग में हम फर्टिलाइज़र का यूज करते हैं, इंसेक्टिसाइड्स का यूज करेंगे, तो उसमें जो भी कैरेक्टर्स यूज हो रहे हैं वो इंसेक्टिसाइड्स के अकॉर्डिंग या पेस्टिसाइड्स के अकॉर्डिंग हम एग्रोनॉमिकल क्वालिटी को इम्प्रूव करेंगे। 6 नंबर है फोटो एंड थर्मो सेंसिटिविटी। तो डेवलपिंग ऑफ फोटो एंड थर्मो इंसेंसिटिव वेराइटीज, हम ऐसी वैरायटी का डेवलपमेंट करें कि जो दीप्तकालिता वाली हो, मतलब शॉर्ट डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट्स ऐसी रहनी चाहिए कि जो कभी जिनको सनलाइट की कम आवश्यकता है या जिनको सनलाइट की आवश्यकता ज़्यादा है, वाटर डिफेक्ट कंडीशन है, वाटर ऑब्जर्वेशन कंडीशंस हैं, या सॉइल की प्रोडक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए, सॉइल जो इरोजन नहीं होना चाहिए, लैंडस्केपिंग जिस जगह एरिया में ना उस जगह हम कल्टीवेशन ना करें। ऐसी कंडीशन में हम देखते हैं कि हम इस जगह राइस और व्हीट का परमिट कर सकें जहाँ की इनसेंसिटिविटी वाली वैरायटियों का डेवलपमेंट हो चुका हो। तो एग्जाम्पल के तौर पे हमने कल्टीवेशन की एक कल्टीवेशन व्हीट का कल्टीवेशन किया केरला में और वेस्ट बंगाल में, या कल्टीवेशन किया हमने राइस का पंजाब में या हिमाचल प्रदेश में। यहाँ हम देखते हैं कि जो इन्वायरमेंट स्टेबल इन्वायरमेंट है वहाँ हम उसका कल्टीवेशन करते तो हैं ही, लेकिन हम अनस्टेबल इन्वायरमेंट में भी इसका कंडीशन पे करें और देखें थर्मो एंड फोटो इंसेंसिटिविटी का इफेक्ट क्या हाई यील्ड के लिए प्रोडक्टेबल है या रिस्पॉन्सिबल नहीं है। सिंक्रोनस मैच्योरिटी, एक टाइम पे मैच्योरिटी का होना, इट्स अ डिजायरेबल ऑफ क्रॉप लाइक मूंग एंड ये बहुत ही सर्वाइवल और बहुत ही नेसेसरी है। अगला है नॉन सेटरिंग कैरेक्टर्स, जैसे कि मूंग है, ब्लैक ग्राम है, हॉर्स ग्राम एंड एक्सेट्रास। डिटर्मिनेट ग्रोथ हैबिट्स, इट्स अ डिजायरेबल ऑफ मूंग, पिजन पी एंड कॉटन। इनमें क्या होता है कि जो ग्रोइंग हैबिट है वे अलग अलग होते हैं, कोई प्लांट्स की हाइट कम रहती है, कोई प्लांट्स की हाइट ज़्यादा रहती है। तो जब प्लांट्स की हाइट ज़्यादा होगी तो यील्ड पे इफेक्ट आएगा, या प्लांट्स की हाइट कम होगी तो उसमें फॉडर क्वालिटी पे कम आएगा। तो इनके कारण क्या है कि हम ऐसी वैरायटी रखें जो कि ग्रोथ की हैबिट्स को डिटर्मिनेट करती रहे। डोरमेंसी, डोरमेंसी बहुत ही एक अच्छा शब्द है जिसकी बीज की सुसुप्तता, हम ऐसे बीज को यूटिलाइज करें जिसमें डोरमेंसी की कंडीशन थोड़ा सा कम रहे, जैसे कि हार्वेस्टिंग के समय देखें कि सीड पूरी तरह मैच्योर हुआ हो, या उसकी जो रेन की मैच्योरिटी है, रेन टाइम है, इफ देयर द रेन आर एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी सो द सीड इज गोइंग टू द डोरमेंसी कंडीशंस। तो हम उसको क्या करें, सीड को जब हार्वेस्टिंग के टाइम पे सीड देखें, टच करके देखें, यदि उसमें थोड़ा सा भी मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा है तो हम उसको सनलाइट का यूज करें और उसकी हम पूरी तरह मैच्योरिटी पीरियड पे लाएं ताकि हम उसको डोरमेंसी की कंडीशन से बचा सकें। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए कि मूंग है या बार्ले है, यदि हम इनकी हार्वेस्टिंग पीरियड देखते हैं तो इस दौरान अगर बारिश हो जाती है तो सीड में डोरमेंसी की संभावना बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। वैरायटी फॉर अ न्यू सीजन, ब्रीडिंग क्रॉप सस्टेबल फॉर द सीजन ऑफ लाइक मेज, खरीफ सीजन से
विच इज़ ग्रोइंग इन रबी एंड समर ऑल्सो। एक मेज़ एक ऐसी वेराइटीज़ है या ऐसी क्रॉप है इसमें से कुछ ऐसी वेराइटियां हैं जो कि रबी और खरीफ दोनों सीजन में ग्रोइंग की जाती हैं। जैसे सोरगम है, सोरगम का खरीफ सीजन में बुंदेलखंड जोन हुआ या भारत के जो ईस्टर्न एरिया है उसमें हम उसका प्रोडक्शन हम खरीफ सीजन में करते हैं, और बाकी जो साउथ एशिया है, साउथ इंडिया एरिया रहता है, वहाँ हम उसका रबी सीजन में उसका हम प्रोडक्शन करते हैं। तो उस कंडीशन में देखा जाए तो ऐसी वैरायटी का यूज करें ताकि वह फुल ईयर हम उसका प्रोडक्शन ले सकें। तो वैराइटीज फॉर न्यू सीजन इज द बेस्ट एग्जांपल इज सोरगम, मेज एंड पिजन पी। मॉइस्चर स्ट्रेस एंड सॉल्ट टॉलरेंस, डेवलपिंग ऐसी वैरायटीज को डेवलप करेंगे कि जो रेन फीड एरिया हो या सॉइल वुड हो या इंक्रीज हो, तो उस जगह हम ऐसी स्टेबल कंडीशन में हम ऐसी वैरायटीज़ का ग्रो करेंगे ताकि उस कंडीशन में क्या है कि हम वैरायटीज़ को कंटिन्यूसली मॉइस्चर स्ट्रेस से या सॉल्ट टॉलरेंस की स्थिति से उभारें, और मुख्य उद्देश्य हायर यील्ड की कंडीशन में हम हेल्प कर सकें। टॉक्सिक सस्टेबिलिटीज़ को सब्सटेंस को हम एलिमिनेट करें। तो कैसे एलिमिनेट करें, इसके लिए क्या है, कंजम्पशंस, जो खेसरी एक ऐसा होता है तत्व है जिसके कारण क्या है कि हम उसकी टॉक्सिसिटी को घटा सकें। जैसे कि आप देखते होंगे सोरगम की क्रॉप में HCN कंटेंट अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। तो सोरगम को जब हम ग्रो करते हैं तो उसका देखा जाता है कि पहला जो रेनी सीजन रहता है, जैसे कि खरीफ सीजन में है, तो पहली बारिश के बाद हम किसी भी जानवर को उसका फॉडर देते हैं, उसको फॉडर पर्पस पे यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें HCN कंटेंट है जो कि टॉक्सिक सब्सटेंस हैं। उसके कारण एक कंडीशन ये देखने को मिलती है कि गले में, जानवरों के गले में घेंगा रोग भी होने की संभावना अत्यधिक रहती है, और गला घेंटू रोग भी बोलते हैं, उसका भी हम देख सकते हैं। तो उसके लिए क्या है कि या तो हम 60 से 70 दिन बाद उसकी हार्वेस्टिंग करें, अन्यथा पहली बारिश होने के बाद हम देखें कि उसमें HCN कंटेंट जो है वो 7 से नीचे आ जाएगा, जो कि फॉडर क्वालिटी को इम्प्रूव करेगा और हमारे जानवर को किसी प्रकार की कोई कष्ट नहीं होगा। तो ये जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस को एलिमिनेट करना भी बहुत ज़रूरी है। वाइडर एडेप्टेबिलिटी, क्रॉप प्रोडक्शन या उसके सीजन्स के अकॉर्डिंग हम उसकी स्टेबलाइजिंग देखते हैं। ये पहला हमारा एडेप्टेबिलिटी है, हम ऐसी वैरायटी को एडेप्ट करें जो कि वाइडर तौर पे, सामान्य तौर पे सभी जगह यूज हो या सभी प्रकार के नेचर में एडेप्ट कर सके। यूजफुल फॉर मैकेनिकल कल्टीवेशन, ऐसी वैरायटी को डेवलप करें जो कि रिस्पॉन्सिबल हो, हर जगह एप्लीकेबल हो, फर्टिलाइजर जिसमें एप्लीकेबल हो, मैन्योर एप्लीकेबल हो, ऑर्गेनिक फार्मिंग एप्लीकेबल हो, इरिगेशन देखा जाए तो कम इरिगेशन हो क्योंकि वाटर डिफिशिएंसी कंडीशन ज़्यादा देखने को मिलती है, या मैकेनिकल कल्टीवेशन में हम उसका स्टेबल कर सकें। अब आएगा, हम स्कोप की बात करते हैं। क्या स्कोप है प्लांट ब्रीडिंग का, क्या स्कोप है? तो प्लांट ब्रीडिंग का है स्कोप है मैनकाइंड की हेल्प करना, पहला। दूसरा है क्लासिकल जेनेटिक्स एंड नंबर ऑफ वैरायटीज़ को डेवलप करना, उनकी नॉलेज बढ़ाना एंड डिटर्मिनेट करना, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग हम प्रोडक्शन का इम्प्रूव करना, और हायर यील्ड में हायर क्वालिटी को बढ़ाना। मॉलिकुलर बेसिस है, साइंटिफिक है, प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक्स हैं, ये सारे इसके स्कोप होते हैं और जिसके कारण हम प्लांट ब्रीडिंग का यूज़ करते हैं। ये एप्लीकेशन बायोटेक्नोलॉजी में भी यूटिलाइज है, या इसमें हम या यूँ कह सकते हैं कि प्लांट ब्रीडिंग इज ऑल्सो यूटिलाइज टू द प्लांट ब्रीडिंग बायोटेक्नोलॉजिकल मेथड। जैसे क्रॉप ऑलरेडी फील्ड में है, उसका हमने क्रॉप को टेस्ट किया फील्ड पे, वो इन विवो कंडीशन में हमने उसको इन विट्रो कंडीशन में उसको लेके आए और हमने उसको बायोटेक्नोलॉजिकल टूल्स में हमने यूज किया। उसको हमने लैब में लेके आए, लैब में हमने सनलाइट जितना टेम्परेचर उसको क्रॉप को जर्मिनेट करने के लिए चाहिए वो हमने लैब में दिया। हमने जो मैन्योर की आवश्यकता है वो हमने जल के माध्यम से या वाटर के माध्यम से हमने उसे दिया। सॉइल में जितनी उसे फैक्टर या जितने भी तत्व की आवश्यकता है वो हमने उसे दिए, और इस कारण देखा और कंपेरिजन किया कि जो बायोटेक्नोलॉजिकल टूल्स हैं क्या वो कंपेरिजन ऑफ बाहर का जो टेम्परेचर है और जो अंदर का जो टेम्परेचर हमने उन्हें दिया, उसमें प्लांट्स में कौन सा प्लांट्स ज़्यादा स्पेसिफाई तरीके से प्रोडक्शन दे रहा है, इसको हम यूटिलाइज करते हैं और इस टेक्निक से हम इसका स्कोप देखते हैं और प्लांट ब्रीडिंग में हम इसका इस स्कोप को यूज भी करते हैं। जीन्स को देखते हैं, ऑर्गेनिज्म है,
ऑर्गेनिज्म को परफॉर्मेंस है क्रॉप की, स्पेशली विद रिगार्डिंग अबायोटिक एंड बायोटिक स्ट्रेस कंडीशन में भी देखते हैं। जैसे बायोटिक अबायोटिक स्ट्रेस है, बायोटिक का मतलब नेचुरल है, जैसे किसी डिजास्टर आ गया, लैंडस्केपिंग आ गई, पानी ना गिरा, या थर्मोसेंसिटिविटी का कंडीशन देख लिया, ज़्यादा गर्मी पड़ गई तो प्लांट सूख गए, या भूकंप आ गया, ये सब जो बायोटिक एंड अबायोटिक स्ट्रेस कंडीशन में आएंगे। इस कंडीशन में क्या होता है कि हमारा टोटली तौर पे कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह हम क्रॉप प्रोडक्शन में कमी महसूस करते हैं, या प्लांट्स की हाइट का कम हो जाना, ग्रो का होना, टाइम पे मैच्योरिटी ना आना। कभी कभी कंडीशन ये रहती है कि जब प्लांट्स को पानी की आवश्यकता अधिक होती है उस समय इरिगेशन ना दे पाना, जब उसे हमें खाद की आवश्यकता है प्लांट्स को ग्रो देने के लिए तब हम उसमें भी कमी महसूस करते हैं, या वगैरह वगैरह बहुत से कारण ऐसे होते हैं जिसके कारण हम अपना प्रोडक्शन में कटाव देखते हैं। तो इनका ये है कि प्लांट ब्रीडिंग के माध्यम से, या उसकी साइंस, उसकी टेक्नोलॉजी, या उसके आर्ट, तीनों फैक्टर के माध्यम से हम इन चीज़ों से अलग करें और प्लांट्स को स्वस्थ रखने की पूरी उसमें एडेप्टेबिलिटी देखें, उसके स्कोप को बढ़ाएं। इसके कारण क्या है कि प्लांट ब्रीडर का मुख्य रोल प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक्स में रहता है। प्लांट ब्रीडिंग 3 मुख्य तथ्यों पर वर्क करती है। पहला प्योर लाइन, दूसरा मास सिलेक्शन, और तीसरा है मल्टी लाइन वेराइटीज। फर्स्ट ऑफ ऑल प्योर लाइन। प्योर लाइन मतलब टोटली तौर पे होमोजाइगस प्योर लाइन, होमोजाइगस लाइन्स को हम प्योर लाइन बोलते हैं। ये सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स में यूज होती है। मास सिलेक्शन क्या है? एक ऐसा मेथड, ब्रीडिंग का एक ऐसा मेथड कि जो प्लांट्स को इंडिविजुअली तौर पे सिलेक्ट करता है, सिलेक्ट करने के बाद उसकी पॉपुलेशन को मिक्स करता है, मिक्स करने के बाद अगली जनरेशन में स्टेप में पहले इंडिविजुअल प्लांट प्रोजनी ग्रो किया, फिर उसको हमने 3 अलग अलग एरियाज़ में उसको कल्टीवेशन देखा और लास्ट में हमने एक वैरायटी निकाल दी जो कि मास सिलेक्शन के थ्रू रिलीज हुई है। एक ऐसा डिजायरेबल मेथड जो टोटल मिक्सअप हो, जैसे सिंथेटिक कंपोजिट वैरायटीज़ का स्टेबल होना, उसके कारण क्या है कि आइसोलाइन रिलेटेड होंगी या जो भी प्योर लाइन्स होंगी, इनको हमने मिक्स किया, मिक्स करने के बाद एक वैरायटी डेवलप कर दी, तो मल्टी लाइन वैरायटीज़ के अंतर्गत उसको हम स्टडी करते हैं। एक्टिविटीज़ इन प्लांट ब्रीडिंग, क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं जरा इसके बारे में बहुत अच्छे से देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिएशन ऑफ जेनेटिक वेरिएशन, क्या क्या क्रिएशन होते हैं? डोमेस्टिकेशन, जर्म प्लास का कलेक्शन, फिर उसका इंट्रोडक्शन, उसकी कितनी वेरिएबिलिटी है उसको नेचुरली तौर पर निकालना। जैसे डोमेस्टिकेशन, क्या है डोमेस्टिकेशन और क्या है जर्मप्लास्ट का कलेक्शन? डोमेस्टिकेशन मतलब हमने ग्रामीण, जो पहला तत्व है या हमने किसी वैरायटी को लेके आए बाहर से, मान के चलो जैसे हमने माना कि जो डॉर्फ वैरायटी थी वीट की, हमने उसको मैक्सिको से इंट्रोड्यूस करा ली इंडिया में। उसका जो पहला स्टेप है, देखा, उसको देखा, पहचाना और हमने ग्रो करने के लिए डायरेक्टली सीधा लेके आया, ग्रो कर दिया, डोमेस्टिकेशन। जर्मप्लास्ट का, उसके जर्मप्लास्ट को हमने कलेक्ट किया, उसका इंट्रोडक्शन किया। इंट्रोडक्शन से मतलब उसको हमने देखा, उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे, क्या वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि अलग कंट्री में थे, क्या वे इंडिया में मैच हैं या नहीं है, इसका हमने इंट्रोड्यूस किया। फिर उसकी जो नेचुरलिटी है या जो वेरिएबिलिटी है उसको एक्सिस्ट किया। इसके अलावा हाइब्रिडाइजेशन की टेक्निक्स को देख, हाइब्रिडाइजेशन में कौन सा है? इंटरवेराइटल, डिस्टेंस और सोमेटिक। जब ये तीनों चीज़ें की स्टडी हो गई तो क्या ये जेनेटिक वेरिएशन को क्रिएटिव करते हैं या नहीं करते हैं, उसमें देखते हैं। तो अगर हमने इसके बाद भी हमें म्यूटेशन, पॉलीपोलाइडी में भी सेकंड स्टेप ऑटो पॉलीपोलाइडी और ओलो पॉलीपोलाइडी। पॉलीपोलाइडी मतलब 2 से अधिक, जो उसके प्यूरिफिकेशन तौर पे हमने 2 से अधिक जर्मप्लास्ट लिए, उनके हमने आपस में क्रॉस करा के देखा, उनके मतलब मोर देन 2 ऑफ द जर्मप्लास्ट इज कंटिन्यूअसली क्रॉसिंग अबाउट इन द इफेक्ट ऑफ द नोन एज इज द पॉलीपोलाइडीज। देयर आर 2 टाइप्स, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑटो एंड ओलो। सोमा क्लोनल वेरिएशन और जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड जेनेटिक वेरिएबिलिटी को क्रिएट करना। इसके कारण हमने देखा कि ये सारे जो 3 फैक्टर यहाँ और 4 फैक्टर यहाँ, ये सब क्रिएशन ऑफ जेनेटिक वेरिएशन करते हैं। इसके बाद हम इसका क्या करते हैं? हमने इसमें से कुछ प्लांट्स को सिलेक्ट किया, उसको वैल्यूएट किया, उसका मल्टीप्लिकेशन किया और उसको डिस्ट्रीब्यूशन किया। ये सारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो पहले स्टेप क्रिएशन ऑफ जेनेटिक वेरिएशन के बाद देखने को मिलती हैं, जिसके कारण हम नई वैरायटी का डेवलपमेंट करते हैं, जो थ्रू बायोटेक्नोलॉजिकल टूल्स भी सक्सेस हैं, तो ट्रेडिशनल टेक्निक्स के थ्रू भी सक्सेस है। एंड हम जो प्लांट ब्रीडर है या प्लांट ब्रीडर के जो वर्क है वो इन दोनों टेक्निक्स पर रिस्पॉन्सिबल होता है। Activities in plant breeding, the desirable change of the genotype in crop species and their consequence
benefits of farmer and in related to the largely independent activities. जैसा कि अभी लास्ट स्लाइड में हमने पढ़ा देखा कि क्रिएटिविटी ऑफ जेनेटिक वेरिएशन को किन किन माध्यम से हम देखते हैं। तो पहला क्या है, सिलेक्शन, दूसरा वैल्यूएशन, तीसरा मल्टीप्लिकेशन एंड चौथा डिस्ट्रीब्यूशन। तो उसके कारण हम देखते हैं इनकी एक्टिविटीज़ को। पहला क्या है, सिलेक्शन। सिलेक्शन क्या है, कंसिस्ट ऑफ आइडेंटिफिकेशन एंड आइसोलेशन ऑफ प्लांट्स हैविंग द डिजायरेबल कॉम्बिनेशन कैरेक्टर्स एंड ग्रोइंग देयर प्रोजेनीज। आइडेंटिफिकेशन किया हमने किसी क्रॉप का, उसको हमने कंसिस्ट किया, कंसिस्ट में देखा, उसकी आइसोलेशन डिस्टेंस देखी, उसके प्लांट्स में क्या क्या कैरेक्टर्स हैं, कौन कौन से डिजायरेबल है, कौन से अनडिजायरेबल है, इसके बारे में हमने क्या किया, उसका सिलेक्शन किया। सिलेक्शन करने के बाद हमने उसको जो ईल्ड थी वो इम्प्रूविंग ईल्ड है, तो क्या ये लाइन है, स्ट्रेन है या वैरायटी है, इसके कंसिस्टेंटली तौर पे हमने इसको देखा। और पॉपुलेशन के लिए कितना पर पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग उसके परफॉर्मेंस को देखा, उसके परफॉर्मेंस को देखने के बाद हमने उसको स्टेबल किया और उसको सिलेक्ट किया। सेकेंड पैरामीटर होता है वैल्यूएशन। क्या जो नई वैरायटी या जो नई लाइन है हमने उसको वैल्यूएट किया। स्ट्रेन पॉपुलेशंस आर वैल्यूएटेड फ्रॉम ईल्ड एंड अदर ट्रेड्स and their performance is compare with the exist best varieties। इसका मतलब कोई लोकल वैरायटी को हमने ग्रो किया, कंपनी के थ्रू हम लेके आए किसी, हमने लोकल वैरायटी को हमने ग्रो किया। ग्रो करने के बाद क्या दिया हमने, हायर, जैसे वीट की 2 वैरायटी हमने जो लोकल की वैरायटी है और हमने एक इंटरनेशनल वैरायटी को हमने भी उसके साथ में एज कंपेयर ऑफ ग्रो किया, देखा क्या वो इन्वायरमेंट स्टेबल करती है या नहीं कर रही है, या उसका प्रोडक्शन सेम है या नहीं, इसको हमने देखा और चेक किया। लास्ट में देखा कि ये ह्यूमन काइंड्स के लिए बहुत यूजफुल है। ये प्रोसेस वैल्यूएशन के अंतर्गत आती है। मल्टीप्लिकेशन, वैरायटी को हमने लगाया, देखा यदि ये ह्यूमन काइंड्स के लिए वैल्यूएबल है और कितना % ये प्रोडक्शन को बढ़ा रही है। यदि बढ़ाती है तो उसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं और मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के नेक्स्ट स्टेप में भी जाते हैं। यदि मल्टीप्लिकेशन नहीं कर रही है तो हम, अगर वो प्रोडक्शन उसका इक्वल नहीं है तो उसको हम वहीं के वहीं रिजेक्ट कर देते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन, सर्टिफाइड सीड्स इज अल्टीमेटली सोल्ड टू द फार्मर हु यूज द कमर्शियल क्रॉप कल्टिवेशन। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है फार्मर। फार्मर का वर्क क्या है, वैरायटी को लेके आया, उसने मल्टीप्लिकेशन किया, उसने मल्टीप्लिकेशन करने के बाद उसको डिस्ट्रीब्यूट भी किया और इतना अत्यधिक मात्रा में डिस्ट्रीब्यूट करता है वह, और उसको वैल्यूएट करता है कि वह कॉमर्शियल कल्टीवेशन के तरीके यूजफुल है या नहीं है। दिस एक्टिविटीज अलोंग टू द मेक विथ द पॉसिबल ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स एंड अबव ऑफ एक्टिविटीज टू फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल एनहेंसमेंट, स्टेबल प्रोडक्शन, सुपीरियर प्रोड्यूस एंड ऑफ्टन ऑफ लोअर कॉस्ट। इसका मतलब वृद्धि करना, इस चीज़ को बढ़ाना, क्रॉप को बढ़ाना, स्टेबल प्रोडक्शन, उसके प्रोडक्शन को स्टेबल करना ताकि वह स्टेबल रहे, कम ना हो, उसके जो सुपीरियर प्रोड्यूस हैं उसको ग्रो करना, एंड लोअर कॉस्ट मतलब उसमें यूज या इसको प्रोडक्शन करने में कम से कम कॉस्ट का सामना करना पड़े। थैंक यू।